Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 10, welcome to your biology class. Today, the topic which will remain under discussion is osmoregulatory function of kidney. This topic is mentioned on pages 25 and 26 of chapter number 11, homeostasis. The word osmoregulatory is actually taken from the word or a process called osmoregulation. Now, what is this process about? It is an example of homeostasis, and according to the definition, as you have done it before, the process through which there is a regular control or balance of water and salts in blood and other body fluids. So I am writing here the definition once again. The regulation of the amount or concentration having same meaning, water and salts in body fluids. And what are these body fluids? Blood and lymph. So we can again talk about the regulation of amount of water and salts in body fluids such as blood and lymph is called osmoregulation. आपके बॉडी फ्लूइड्स मेनली ब्लड के अंदर दो चीज़ों की मिकदार यानी वाटर और सॉल्ट की मिकदार का कंट्रोल हद में रहना या कंट्रोल होना, जिससे ना तो वाटर और सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा हो और ना ही बॉडी के अंदर कम हो, इस पूरे अमल को या प्रोसेस को ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। ऑस्मोरेगुलेशन का अमल परफॉर्म करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स मौजूद हैं जिन्हें किडनीज़ कहा जाता है। ये किडनीज़ किस तरह से ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं? सो यू हैव टू चेक द नेक्स्ट हेडिंग नाउ। द नेक्स्ट टॉपिक is importance of kidney in osmoregulation. Now before this you must observe this example. It's your turn to take out the trash. What is trash here? Garbage. You carry the bag outside and put it in the trash can. What is trash can? It is the dustbin. The next day you bring out another bag of trash, but the trash can is full. It is now full. आपने बहुत ज़्यादा इसमें गार्बेज डाल दिया है और अगले दिन भी आपने मुख्तलिफ़ किस्म के शॉपर्स हैं कचरे के, गार्बेज के, वो आप इसमें डाल रहे हैं। अब क्या हुआ है कि चूँकि ट्रैश कैन खाली नहीं हुआ, लिहाजा ये आहिस्ता आहिस्ता भरता जा रहा है। नाउ व्हाट हैपन्स, क्या होता है इसके साथ जब ये भर गया? So it is now full. When trash isn't collected, it piles up. So your body will also be perform same function, just as trash needs to be removed from your home. अब ट्रैश कैन अगर भर जाए तो आप क्या करते हैं? इसको घर से रिमूव कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको बाहर जाके फेंक दें। In the similar manner, your body must eliminate waste materials to remain healthy. And which system in your body perform this function just like the trash can? So here inside our body the trash can is our kidney, which actually perform the process of excretion. Not only the process of excretion is related to it, but also it performs some other functions such as osmoregulatory function for your body. So this is the clear-cut example in front of you. Kidney performs an important function of osmoregulation by these two steps.
By following these two steps, you can better understand what is osmoregulatory function that kidney performs. So first one is excessive loss of water, concentrate the body fluids. What happened in this case? कि बाद दफ़ा जिस्म से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाने या रिमूव होने की शक्ल में बॉडी फ्लूइड्स कॉन्सेंट्रेट्स हो जाते हैं. कॉन्सेंट्रेट मीन गाढ़े हो जाते हैं. इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप एक ग्लास के अंदर पानी लीजिए और पानी के अंदर आप बहुत ज़्यादा मिक़दार में सॉल्ट ऐड कर दें. पानी लेने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में आप सॉल्ट ऐड कर दें. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत ज़्यादा मिक़दार में यहाँ पर पानी के अंदर सॉल्ट ऐड कर दिए और फिर आप कुछ ऐसा करें कि सारा का सारा जो पानी है वो मैक्सिमम अमाउंट में ग्लास से रिमूव कर दें. रिमूवल ऑफ वाटर हो कर दिया. अब आपने पानी को उसमें से निकाल दिया है. आपके ग्लास में बचने वाला जो कंटेंट है यानी सॉल्ट कैसा हो जाएगा, क्या नेचर होगी इसकी? तो ये कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेट? यानी ये गाढ़ा हो जाएगा. इसमें अब कोई पानी की ज़्यादा मिलावट नहीं है, लिहाजा ये अब गाढ़ा है. इसी तरीके से सेकंड पॉइंट इंडिकेट कर रहा है एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर डाइल्यूट द बॉडी फ्लूइड्स. इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे आपने पानी लिया और पानी के अंदर आपने लेस अमाउंट में सॉल्ट ऐड कर दिया. लेस अमाउंट यानी अब अमाउंट इतना सा लिया आपने सॉल्ट का. Now in this time you are going to do excess intake of water. अब आपने अपने ग्लास को ये समझना है कि ये बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्लड है या आपके लिम्फ हैं, और ये बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो आपके बेसिकली वाटर और सॉल्ट्स कंटेन किए हुए हैं. लिहाजा इस दफ़ा अब आप देख रहे हैं कि पानी इनमें ज़्यादा आ गया है. एक्सेस इंटेक का मतलब है पानी इसमें अब ज़्यादा है जबकि सॉल्ट की मिक़दार आपको यहाँ पर बहुत कम नज़र आ रही है. In this case, when high amount of water and the less amount of salt present in body fluid, then the condition is called dilute. यानी अब ये कंडीशन क्या होगी? डाइल्यूट होगी. यानी अब ये कम गाढ़ा है या बिल्कुल पतला, जिसे हम उर्दू में लफ्ज़ पतले के नाम से या पतला बिल्कुल महलूल, पतला सॉल्यूशन, इस तरीके से हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. तो ग्लास को आपने क्या समझना है? बॉडी फ्लूइड्स. और अगर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पानी की कमी वाक़ई हो जाए यानी सारा तकरीबन आपने पानी वहाँ से रिमूव कर दिया तो जो बच जाने वाला सॉल्ट है वो गाढ़ा होगा. इसका मतलब ये है कि जब बॉडी फ्लूइड्स में पानी की कमी वाक़ई हो जाएगी तो ये कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, जबकि अगर बॉडी फ्लूइड्स जो हैं उनमें पानी की ज़्यादती होगी तो ये डाइल्यूट हो जाएंगे. By two ways, kidney performs its osmoregulatory function. First, by the formation of dilute urine, which is also called hypotonic urine. Meaning of hypotonic is less amount of solute and more amount of solvent, that is water. So if there is excess water in body fluids, what are these body fluids? Such as blood. Then what happens? Kidney filter more amount of water from glomerular capillaries into the Bowman's capsule. See this process here? So if there is huge amount of water in the blood, what happens? Kidney filters more amount of water from glomerulus. These are the glomerular capillaries. So more amount of water is filtered by the kidney and it is filtered from glomerular capillaries into the Bowman's capsule. So finally water goes from the glomerular capillaries into the
into the cup-shaped structure that is called the Bowman's capsule. Bowman's capsule. And we can also say that less water is reabsorbed through the renal tubule. What happens here? These tubules are basically called the renal tubules. इन ट्यूब्स के अंदर या ट्यूब्यूल्स के अंदर पानी की कम मिकदार रीअब्ज़ॉर्ब होगी. जितना कम पानी रीअब्ज़ॉर्ब होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि ये फ़िल्ट्रेशन की तरफ जाएगा. फ़िल्ट्रेशन से मुराद कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा जिसमें सॉल्यूट यानी सॉल्ट की मिकदार कम और पानी की मिकदार ज़्यादा होगी. क्योंकि सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, ये स्टेप है, उससे तमाम का तमाम जो अमाउंट होता है पानी का या दूसरे सब्सटेंसेस का वो बॉडी को रिटर्न हो जाता है. ये रिवर्स प्रोसेस हो जाता है. लिहाजा जितनी रीअब्ज़ॉर्प्शन ट्यूब्यूल्स के अंदर कम होगी, डिक्रीज़ होगी, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी कहाँ जाएगा? यूरिन फॉर्मेशन के लिए चला जाएगा. जितना ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा उसका ये मतलब हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो कि ब्लड या लिम्फ के अंदर मौजूद था वो अब किडनी जो है वो फ़िल्टर कर रहा है और उनको कहाँ निकाल रहा है? उनको अपने बॉडी से, यानी आपकी कोशिश हो रही है कि आप उसको बॉडी से निकाल रहे हैं. ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो गई थी. लिहाजा उसको कंट्रोल करने के लिए अब किडनी क्या कर रहा है? किडनी ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके लिए उसने किस चीज़ को बढ़ा दिया है? उसने अपने जो प्रेशर फिल्ट्रेशन का जो अमल है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोमेरुलस से जो कैपिलरीज़ होती हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़, उन्होंने उस फिल्टर्ड मटेरियल को, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं, उसका प्रेशर बोमेंस कैप्सूल की तरफ ज़्यादा बढ़ा दिया. और बोमेन कैप्सूल अब इसको कहाँ डिलीवर कर रहा है? आपके ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिन्हें रीनल ट्यूब्यूल्स कहा जाता है. रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो रीअब्ज़ॉर्प्शन, जिसे मैंने आपको बताया था सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन, उसका प्रोसेस कम हो गया है. लिहाजा अब वो पानी रिटर्न बैक नहीं होगा बॉडी को, बल्कि आगे की तरफ जाएगा. कहाँ जाएगा? यूरेटर की तरफ जाएगा. एंड फाइनली वी कैन से इन दिस मैनर किडनी एबल्स टू रेगुलेट द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड, जिसमें आपके पास बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो नॉर्मल आपकी अमाउंट ऑफ वाटर है वो बैलेंस हो जाएगी, उसकी नॉर्मल रेंज आ जाएगी. और इस तरीके से किडनी आपके ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है उसको इस तरीके से बॉडी से हाइपोटोनिक यूरिन की शक्ल में रिलीज़ कर देता है. Now sometimes it also happens that kidney starts forming concentrated urine or hypertonic urine. Meaning of hypertonic is more amount of solute and less amount of solvent, that is water. So in this case, when there is shortage or less amount of water in body fluids, that is in blood, what happens? Kidney filters less amount of water from glomerular capillaries into the Bowman's capsule, and the rate of reabsorption of water is increased. Now you can check over here what happens. If the less amount of water is present in the blood, that is the body fluid, then kidney filters less amount of water from glomerular capillaries into the Bowman's capsule. So the reverse process will occur. How? That filtration will be decreased. So filtrate is not moving toward the renal tubule. Now this time more water is reabsorbed through the renal tubule and back into the Bowman capsule and finally into the glomerular capillaries, and then it return back to the body, because in the body there is a deficiency or shortage of water. So kidney again control this balance by some of its processes, such as decreasing in the case when dilute urine is produced, but increasing this time, increasing the process of selective reabsorption. Why? Because selective reabsorption helps in
supplying more amount of water or return back that amount of water to the body once again. So to cover that deficiency of water in the body fluid, increased reabsorption occurs with the less filtration by the kidney. So in this way the whole mechanism for the formation of concentrated urine has been controlled or is performed by the kidney. And in this manner the normal value of the body fluid is now becoming increased. And this all process is under the control of hormones. So hormones which are actually produced by the part of brain called hypothalamus actually responsible for controlling this mechanism for the formation of concentrated urine. फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन और हाइपरटोनिक यूरिन के अमल को हम एक बार फिर समझते हैं। इस अमल में आप देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा और सॉल्वेंट यानी पानी की मिकदार कम है। जिसमें हम ये देख रहे हैं कि नॉर्मली जो बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी में ब्लड या लिम्फ की शक्ल में होते हैं उनमें पानी की कमी वाक़ई हो जाती है। जब हमारे जिस्म में पानी की कमी होती है तो किडनी इस बात को महसूस कर लेता है और किडनीज़ क्या करते हैं, किडनी फ़िल्टर करना शुरू कर देते हैं लेस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कम मिकदार में पानी जो है वो बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से भेजना शुरू हो जाते हैं। क्या कहने का मकसद क्या है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा बोमेन कैप्सूल में दाखिल नहीं होता, बल्कि ये रिवर्स प्रोसेस होता है। यानी फ़िल्ट्रेशन जैसी ही कम होती है तो क्या मतलब हुआ फ़िल्ट्रेशन कम होने से कि पानी की जो मिकदार बोमेन कैप्सूल में चली गई है वो वापस रिटर्न बैक होती है, कहाँ से, बोमेन कैप्सूल से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर, और वहाँ से फिर बाकायदा ब्लड वेसल्स के ज़रिए खून में ये पानी वापस जाना शुरू हो जाता है। इसकी मज़ीद जो रफ़्तार है, यानी पानी की मज़ीद बॉडी फ्लूइड्स के अंदर रफ़्तार को एक और प्रोसेस जो कि किडनी में अंजाम पाता है वो है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर होने वाला सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का अमल, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर, यानी इंक्रीजिंग मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर रीअब्जॉर्ब होने के बाद बोमेन कैप्सूल से दोबारा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और इस तरह ब्लड को रिटर्न बैक होता है, वापस चला जाता है, जिसके नतीजे में जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है उसकी स्मॉल अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गई ये बात। अब जितनी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस होगी उससे नतीजतन क्या होगा कि आपके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो नॉर्मल वॉल्यूम है, किस चीज़ का नॉर्मल वॉल्यूम, ऑब्वियसली आपके वाटर का और सॉल्ट्स का, वो एक लेवल पे भी आ जाएगा और साथ साथ वो बढ़ता भी चला जाएगा। यानी पानी की मिकदार आपके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर बढ़ती चली जाएगी, जिससे वो डेफिशिएंसी जो आगाज़ में हमने देखी थी वो कवर हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर आपका जो एक ऑस्मो रेगुलेशन है, यानी अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट है, वो बैलेंस हो जाएगा। अब इस पूरे मैकेनिज़्म को, जिसमें हमने हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्मेशन देखी, हमने क्या देखा, हमने ये भी देखा कि ये पूरा प्रोसेस एक ख़ास किस्म के केमिकल्स के अंडर कंट्रोल होता है जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। और इस हार्मोन के कंट्रोल ही के नतीजे में आपने ये पूरा प्रोसेस देखा, जिसको हम लेटर ऑन मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह से आपका ये पूरा अमल एक हार्मोन के अंडर कंट्रोल में होता है। किडनी के ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को समझने के लिए आपको इस फिगर से हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक ह्यूमन ब्रेन है और उसके साथ एक किडनी मौजूद है। सो स्टे इन गुड हेल्थ, द फ्लूइड लेवल विद इन द बॉडी मस्ट बी बैलेंस एंड द नॉर्मल ब्लड प्रेशर मस्ट बी मेंटेन। और ये काम कौन करता है? ये आपकी बॉडी के अंदर किडनीज़ करते हैं। सो एन एरिया इन द ब्रेन, हियर यू कैन सी दैट एरिया, ये नज़र आ रहा है आपको छोटा सा एरिया। This area of the brain is called the hypothalamus. What is the name of this area or part of the brain? Hypothalamus. So it constantly monitors the amount of water in the blood. When the brain detects too much water,
In the blood, the hypothalamus, that is this part, releases the lesser amount of a specific hormone which is called the vasopressin. Vasopressin. And this signals the kidney to return less water to the blood and increase the amount of waste water, that is called the urine, and that has to be excreted from the body. So this figure actually indicates how the body reacts when too little water in the blood. So this is the whole mechanism that is under the control of hormones.